everyone, so let's move towards our today's topic, which is First, remember this point that if you want to study any topic in embryo, first understand the gross anatomy of it. So, as we have already talked about spinal cord and brain in gross anatomy, and we have already talked about spinal cord development. Now we are talking about development of brain. Now, as we have already told that I have already told you that above fourth somite, the brain, the neural tube will form brain. So during third week, the neural tube in the cranial end, they will form three brain vesicles or three primary brain vesicles. One is number one prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Now, prosencephalon is also known as forebrain, mesencephalon is also known as midbrain, and hind brain is also known as rhombencephalon. Now, remember this point. You have to remember these names. कि prosencephalon को forebrain कहते हैं, mesencephalon को midbrain कहते हैं, and so on. Now, during fifth week, these primary vesicles, these three primary brain vesicles, will further divide. They will form vesicles which are known as secondary vesicles. Prosencephalon will form two further vesicles, diencephalon and telencephalon. Mesencephalon will not form any vesicle, and rhombencephalon will form two vesicles, myelencephalon and metencephalon. Now during fifth week, flexures are also formed. Now how the flexures are formed? Flexures are basically, you can say, the bendings. Now when there is folding of the embryo, as you know, there is folding of embryo during fourth and fifth week. So what happens? The flexures are formed, and those flexures names are midbrain flexure, cervical flexure. These two flexures are formed due to folding of an embryo, and the another flexure is pontine flexure, which is present between the midbrain flexure and the cervical flexure, and it is formed due to these two flexure. Now अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट सबसे पहले तो मिड ब्रेन फ्लेक्चर बना, ठीक है, मिड ब्रेन के पास, फिर सर्वाइकल फ्लेक्चर बना सर्वाइकल के पास, सर्वाइकल रीजन के पास. अब जब ये दो फ्लेक्चर बन गए तो दोनों फ्लेक्चर्स के दरमियान पॉन्टाइन फ्लेक्चर, एक अनदर फ्लेक्चर बना जिसे पॉन्टाइन फ्लेक्चर कहते हैं. ऑब्वियसली एलआर प्लेट्स भी होंगी, बेजल प्लेट्स भी होंगी इन पूरे न्यूरल ट्यूब में, सो हम उसकी भी बात करते हैं. और इन प्लेट से न्यूरोब्लास्ट, न्यूरोएक्टोडर्म, न्यूरोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो न्यूक्लिया बनाएंगे एंड सो ऑन. नाउ हाइंड ब्रेन, फर्स्ट वी विल गोना टॉक अबाउट हाइंड ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज rhombencephalon. नाउ द pontine flexure which is present near the pons in the area which in future will develop the pons, it is present near that. So pontine flexure will divide the hindbrain into myelencephalon and metencephalon. Like I said कि hindbrain further दो वेसिकल बनाएगा, तो वो कैसे क्यों बन रहे हैं, कैसे आप उसको रिकग्नाइज करेंगे कि pontine flexure होगा, ऊपर myelencephalon होगा और नीचे metencephalon होगा, नीचे myelencephalon होगा और ऊपर metencephalon होगा, ठीक है. अब myelencephalon क्या बनाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जबकि metencephalon क्या बनाता है? pons और cerebellum. ओके. Now first we will gonna talk about myelencephalon. Myelencephalon, like I said, medulla oblongata बनाता है. अब मेडुला में जितने भी न्यूक्लिया हैं वो कैसे बनेंगे? तो मेजर न्यूक्लिया हैं वो सेंट्रल न्यूक्लिया हैं और ग्रेसाइल न्यूक्लिया हैं. तो जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं जो एलआर प्लेट में मौजूद हैं वो जाएंगे वहाँ पर मेडुला में, और मेडुला में जहाँ पर जो रीजन में उनको न्यूक्लिया बनाने वो न्यूक्लिया फॉर्म करेंगे. जो वॉल ऑफ मेडुला है वो लेटरली मूव करेगी. जब ये न्यूक्लिया फॉर्म हो जाएंगे सारे, तो द वॉल ऑफ मेडुला विल मूव लेटरली, एंड ड्यू टू विच न्यूक्लियाई आर फॉर्म. व्हाट आर न्यूक्लियाई? द ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. ओके, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम वेयर cranial nerve are arising. We will discuss in next upcoming videos about this about the upcoming topic, that is कि कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं और कौन सी नर्व है. बट पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट कि बस नाम आपने याद करने के कौन से प्लेट से जो नर्व हैं क्या बना रहे हैं. तो जो बेजल प्लेट के न्यूरोब्लास्ट हैं वो फॉर्म करेंगे मोटर न्यूरॉन न्यूक्लिया. उनके नाम क्या है? नंबर 1 जनरल सोमेटिक एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट,
एंड जनरल विसरल एफेरेंट, ठीक है, जनरल सोमैटिक एफेरेंट, जनरल विसरल एफेरेंट एंड स्पेशल विसरल एफेरेंट। ये तीन कहाँ से बनते हैं? बेजल प्लेट के न्यूरोब्लास्ट से। जबकि एलआर प्लेट के न्यूरोब्लास्ट से, न्यूरोब्लास्ट ऑफ एलआर प्लेट विल फॉर्म सेंसरी न्यूरॉन न्यूक्लियाई। व्हाट आर दोज? जनरल विसरल एफेरेंट, जनरल सोमैटिक अफेरेंट, स्पेशल विसरल अफेरेंट, स्पेशल सोमैटिक अफेरेंट। अब ए फॉर एलआर प्लेट, ए फॉर अफेरेंट, तो जितने भी अफेरेंट वाले हैं वो एलआर प्लेट फॉर्म करेगा, जितने भी एफेरेंट वाले हैं यानी ई वाले वो बेजल प्लेट फॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ मूव टूवर्ड्स मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन, लाइक आई सेड, दे विल फॉर्म पॉन्स एंड सेरिबेलम। नाउ पॉन्स, एज यू नो, पॉन्स के पीछे सेरिबेलम होता है, ठीक है। होता क्या है कि पॉन्स, फॉर एग्जांपल लाइक आई सेड कि पहले तो मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर जाते जाएंगे तो पहले आएगा मेडुला, फिर आएगा पॉन्स, फिर आएगा मिड ब्रेन, फिर आएगा ब्रेन। अब होता ये है कि पॉन्स के बिल्कुल पीछे सेरिबेलम होता है। अब सेरिबेलम को थोड़ी देर साइड पे कर दें, आप सोचें कि सेरिबेलम नहीं है, फॉर एग्जांपल सेरिबेलम को भी नहीं बनना, सबसे पहले पॉन्स बनेंगे। ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना मेटेनसेफेलॉन, यही पॉन्स डेवलप हो जाएंगे, यहीं के एलआर बॉडीज और बेजल बॉडीज बेसिकली क्या, एज अ बेजल प्लेट एंड एलआर प्लेट विल फॉर्म, द न्यूरोब्लास्ट विल फॉर्म न्यूक्लियाई in the pons region. Now what happen on the lateral side of the pons? The two swellings will appear and those swellings are known as cerebellar swellings. These swellings will fuse together and they will form cerebellum, simple as that. अब जो न्यूरोब्लास्ट एलआर प्लेट के और बेजल प्लेट के हैं वो पॉन्स में भी न्यूक्लियाई बनाएंगे और जो सेरिबेलम के कुछ न्यूक्लियाई हैं वो भी बनाएंगे। अब जब न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ऑब्वियसली सेरिबेलम बन रहा है, तो सेरिबेलम और पॉन्स के दरमियान क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल की डेवलपमेंट भी यहीं होती है। ओके, नाउ एज यू नो meninges are covering the whole spinal cord and brain. There those meninges will they will form telachorrhea as well, like I said in fourth ventricle recording. तो आपने क्या करना है, पहले ग्रॉस एनाटमी पढ़नी है, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कि क्या क्या बनेगा, क्योंकि बिकॉज आपको मैंने सिर्फ इतना कहना है कि भाई सेरिबेलम बन रहा है और पॉन्स बन रहे हैं, तो आपने खुद ही ने आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्वियसली सेरिबेलम और पॉन्स के दरमियान फोर्थ वेंट्रिकल है, तो फोर्थ वेंट्रिकल भी बन रहा है। तो ये आपने अपना जो है ना ये भी करना है कि फोर्थ वेंट्रिकल में टीलाकोराइडिया होता है। वो टीलाकोराइडिया कैसे बनता है? पाया मेटा की डबल लेयर होती है जो अंदर जाती है और दोबारा बाहर आती है, जो डबल लेयर बन जाती है वो टीलाकोराइडिया कहलाता है। तो वो मैं बता चुका हूँ फोर्थ वेंट्रिकल में। नाउ मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन वी विल कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट।